ये तो बताया हूँ। अभी स्लाइड लिखने के बजाय एक लाइन एक स्टेटमेंट में आप डाल दीजिए। तो नॉलेज होना चाहिए आपके पास, समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देखो सर, अब खाना इसका है तो सबके नहीं आया नाम नहीं आया। यश यश मेरा स्टूडेंट 132 by x minus 132 upon x plus 11 equal to 1 आ गया। 132 1 by x minus 1 by x plus 11 equal to 1। 132 का 1 x and x plus 11 equal to 1, तो x plus 11 minus x common। 132 into 11 upon x square plus 11x equal to 1, or x square plus 11x equal to y is equal to 33 to 35, and this x square plus 11x minus 1452 and is equal to 0. This is the standard form of quadratic equation, and try to solve. It's your homework. It's homework for all students of 10th class CBSE. Try to factorize this quadratic equation and try to find the result. The value of x be the speed of passenger, and when you are added 11 in the value of x, then you can find the speed of x passenger. Okay? तो आज के लिए बस इतना ही। आई स्टॉप हियर। Good morning, students. I am going to continue your exercise number 3 and question number 8. Question number 8 is: a train travels 360 km at uniform speed. If the speed had been 5 km more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the. Let question number 8. Let speed uniform speed of train equal to x km per hour. Therefore, time taken by the train equal to 360 by x hour. टाइम इक्वल टू स्पीड अपन डिस्टेंस अपन स्पीड होता है ना, तो डिस्टेंस 360 km है और स्पीड को हमने x km पर आवर कंसीडर किया, तो टाइम कितना हो गया? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 360 अपॉन x hour. According to question 82, you can see that 82. According to question, if speed is 5 km per hour more, then speed of train be x plus 5 km per hour. यूनिफॉर्म स्पीड कितनी थी? x km per hour. 5 km per hour को मैंने इंक्रीज किया, तो अब टोटल स्पीड कितनी हो गई? x plus 5 km per hour. अब टाइम कितना हुआ? देन टाइम टेकन by the train equal to 360 upon x plus 5 hour. This time is 1 hour less from this time. Therefore, 360 upon x plus 5 equal to 360 upon x, and 1 is less, therefore minus 1.
1 आवर्स लेस है तो ये इक्वल कब होंगे जब हमने इसमें से 1 आवर को लेस कर दिया। नाउ कैलकुलेशन आप करें, implies that 360 upon x plus 5 minus 360 upon x equal to minus 1, dividing equation by minus 1 from both side, you will get 360 by x minus 360 upon x plus 5 and is equal to 1. Now calculation is here. Take LCM, x into x plus 5, 360 be common. Now x plus 5 minus x equal to 1. X will be cancelled. 360 into 5 by x square plus 5x by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 तक इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट आपको मिलेगी इक्वल टू 0 0 this and after taking side 5x minus 1 and 0 0 equal to 0. This is standard form of quadratic equation. Now we have to factorize it. अब हमें इसको फैक्टराइज करना, फैक्टर करना इसका, और फैक्टर करने के बाद हमको x की वैल्यू मिलेगी। तो फैक्टर जब हम करेंगे तो देखिए 1800 को हम लिख सकते हैं 60 into 30, 20 into 3 into 30, और क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं हम 10 into 2 into 3 into 10 into 3, तो 3 3 9, 3 2 16, 5 into 2 into 2 into 3 into 5 into 2 into 3, 5 5 25 15, and 36. Yes, factoring this, x square plus 45x minus 50x minus 1800 is equal to 0. Now taking on x plus 45 minus 50 x plus 45 and is equal to 0. And बाकी में इसकी साउंड हुआ है। And finally look, factorization is x plus 45 and x minus 40 equal to 0. If x minus x plus 45 equal to 0, x is equal to minus 45, not possible. Because velocity of any moving particle will not be negative. Velocity negative नहीं होती, इसलिए ये possible नहीं है. And if x minus 40 equal to 0, then x is equal to 40 km per hour. Therefore, uniform speed of train equal to 40 km per hour. This is your answer. एक बार आप हिंदी में इसको समझ लें। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है जिसने 360 km की जर्नी ट्रेवल की। अब क्वेश्चन है कि अगर उसकी स्पीड को 5 km पर आवर बढ़ा दिया जाता, इंक्रीज किया जाता, तो उसके द्वारा जो टाइम देखो भी आवाज आएगी।
बताइए ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो हमने कंसीडर किया फर्स्ट स्टेटमेंट में लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स km पर आवर। अब एक्स km पर आवर की स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो 360 km को ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, हाउ मेनी टाइम टू टेकन बाय द ट्रेन, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 बाय एक्स आवर। अब हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 km पर आवर स्पीड बढ़ा दिया, तो अब स्पीड कितनी हो गई x प्लस 5 km पर आवर। फिर मैंने टाइम निकाला, टाइम कितना हुआ 360 अपॉन x प्लस 5 आवर हुआ। दिस टाइम इज 1 आवर लेस फ्रॉम दिस टाइम। हमने इस रिलेशन का यहाँ पे यूज किया था जो भी मैंने अरेंज किया, और फिर इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व किया तो फाइनल हमको रिजल्ट मिला कि यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 km पर आवर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। रहने दो, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है इसमें आप भी करोगे क्वेश्चन जाता है। Now the next question is two water tap, most important question ये क्वेश्चन आपकी इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रीड करने जा रहा हूँ। टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल a tank of 93 by 8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. एक पानी की टंकी है, टैंक का मतलब क्या, टैंक वाटर टैंक है, ठीक है। इसमें दो तरह के वो लगे हैं, पाइप लगे हैं। एक का डायमीटर ज्यादा है, मोटा है, और एक का डायमीटर का मतलब पतला है। जो मोटा लार्जर डायमीटर का है उससे पानी ज्यादा जाएगा ना, तो जब वो चलता है वो पतले वाले के अपेक्षा 10 आवर्स कम लेता है। मतलब अगर वो 50 घंटे में भरता है पतला वाला, वो 40 घंटे में भरता है, ठीक है। और जब दोनों को एक साथ कर दिया जाता है तो क्वेश्चन है कि वो 3/8 आवर में पूरे टैंक को भर देते हैं दोनों मिलकर। तो बताओ दोनों अलग अलग कितना टाइम लेंगे उसको फिलअप कर देंगे, ये क्वेश्चन हमारा। तो मान लीजिए लेफ्ट टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस, लेफ्ट और लार्जर डायमीटर टैंक taken to fill the tank in X hour. Therefore, smaller tap will take
ठीक उसी तरह सेकंड वाला भी है, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं ना। अब दोनों ने मिलकर टैग को फिल कर दिया, कंप्लीट हो गया, माने एक हो गया। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखो 75/8 को अगर हम कॉमन ले लें तो दिस इक्वेशन कैन बी obtained by now 1/x plus x plus 10 is equal to 8/75. Now x and x plus 10, x plus 10 plus x equal to 8/75. Now put x plus 10 upon x square plus 10x, 8/75. आप चाहो तो इसको दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हो। x plus 5 upon x square plus 10x equal to 4/75 by cross multiplication. You will get x square plus 10x, sorry, 4x square plus 40x equal to 75x plus this. After side changing, you will get 40x minus 75x, 375 equal to 0. Now 4x square minus 30x and minus 375 equal to 0. Now we have to factorize it. आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी 375, 5 7 35, 5 5 15, 3 and 1 and 4 is also, and we have 30. Good. 30. Then what can be possible value? 15, 60, 25 निकालने में कितना आएगा? 35 आ जाएगा, यानी आ जाएगा ये आपका पॉसिबल फैक्टर 4x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 25x minus 375 equal to 0. 4x is common, x minus 15 plus 25 common, x minus 15 now equal to 0. X minus 15 in one bracket, 4x plus 25 in the other bracket equal to 0. If x minus 15 equal to 0, x equal to 15, if 4x plus 25 equal to 0, now 4x equal to minus 25, x equal to minus 25 by 4, not possible. Not possible. So your answer is that larger diameter of tank can fill the tank in 15 hours, and smaller diameter of tank can fill the tank in 25 hours. 10 hours ज़्यादा ले रहा है, तो larger diameter का tank कितना लेगा? 10 hours, sorry 15 hours, और smaller diameter का tank कितना लेगा? 25 hours ही आपका। ठीक है, तो इस तरह जो है by this process you should try to convert your word problem into the equation first.
if you will succeeded in this process, then in the other step you are able to solve your equation and try to find the result. रिजल्ट को फाइंड करने के लिए पहले तो हमें इक्वेशन चाहिए, और इक्वेशन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हम अपने वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। जैसे देखिए मैं फिर एक क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। An express train takes 1 hour less than passenger train to travel 130 km। मतलब दो ट्रेनें हैं, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है, दोनों 132 km की डिस्टेंस को कवर करती है। क्वेश्चन है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में 1 आवर कम लेगी। भाई ज्यादा तेज चलेगी तो समय कम लगेगा, एक्सप्रेस ज्यादा तेज चलती है। कि हम बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर, विदाउट सब बेकार की चीजें स्टार्ट बैठेंगे। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km per hour मोर देन पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन। यानी एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 km per hour अधिक है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी इक्वल टू x km per hour। Therefore, average speed of express train equal to x plus 11 km per hour. Right? Time taken by the express train to cover 132 km equal to 132 upon x plus 11 hour। ये एक्सप्रेस ट्रेन का हुआ। फिर टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 km इक्वल टू 132 अपॉन x आवर। रिलेशन इज दैट 132 upon x plus 11 is 1 hour less than 132 upon x. Then equation be generated 132 upon x plus 11 is equal to 132 upon x minus 1। अब आप साइड चेंज करके अपना इक्वेशन आप एलसीएम लेके जनरेट कर लो, सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाए। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम वर्ड प्रॉब्लम को किस तरह करना चाहते हैं। तो आइए कहाँ से नीचे नहीं आ रहा कुछ। पहले बता के रखा। हमारा वीडियो गड़बड़ हो गया। चलो बता सुनाया आया, आवाज तो मेरी सुनाई दे रही होगी ना। लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन equal to x km per hour। Therefore, speed of express train equal to